जैसे शार्क टैंक में बात करी, हम लोगों का पीक था 3.5 लाख 4 लाख 4.1 was around. हाँ 4 एवरेज था. शार्क टैंक हमारा एपिसोड आया ऑन 4th मार्च. वी हिट द सेम फिगर बाय 8th मार्च. मतलब हमारा जो महीने का उस टाइम पे चल रहा था, वी क्लोज्ड इट 8th मार्च को इजी. तो मेरे को क्या कहते हैं, ये थोड़ा वो हो गया था, मेरे को फोमो हो गया था. मैं डिसअपॉइंटेड था जनरली कि कॉल करके किसी ने मेरे को ये नहीं बोला मुंबई आ रहे हो आग लगा दे. तो वो होता है ना कि सोनी का शो है, आपको कोई कॉल करके बोलेगा मुंबई आ रहा है आग लगा देगा. वो नहीं हुआ. एक तो अनुपम वाज हाईली एंगेज्ड इन द पिच. आई मीन जो 1.5 से 2 घंटे का वो था, अगर हमारी एनर्जी एक्स लेवल थी तो अनुपम वाज मैचिंग दैट एनर्जी टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट. आई मीन ही वाज dissecting the business, he was asking all the kinds of questions, he was grilling us, and then he was the first person to give us an offer. क्यूरियोसिटी थी कि आप बेवरेज इंडस्ट्री में ही क्यों कूदे? बिकॉज अनुपम ने भी पिछले सीजन्स में कहा था ना कि बेवरेज इंडस्ट्री का तो शमशान बना हुआ है, एंड आपने पिच में कहा था कि हाँ हम उस शमशान का पार्ट नहीं बनने वाले. Yo, what is up my friends? Welcome back to Thoughtcast. My name is Aditya Bajaj, and for today my guest is none other than a vibing entrepreneur, Gaurang Gedia. Gaurang, along with his college friend, started a brand called FOMO during their final year of college. FOMO is a non-processed and a low-sugar content product-based brand. They had been featured on Shark Tank India Season 3 a few days ago and got a funding from Aman Gupta and Anupam Mittal. In this episode of Thoughtcast, Gaurang has explained the struggles they faced during building FOMO in their college times, their process of getting a funding, how they vibe and built FOMO as a brand, and their vision of expanding pan-India. So, the super interesting, super fun, super vibing episode with Gaurang Gedia starts in 3, 2, 1. Yeah, life's been pretty good. The 4-5 days that were there after Shark Tank were pretty hectic. आज Saturday Sunday आ गया, the weekend has hit, so it is comparatively chill now. But जो 4-5 दिन थे, outpouring response था. We got so many calls, so many orders. We are in the business of beverages, right? मतलब हम लोग iced teas करते हैं, primarily glass bottles में. In the D2C space, it's not considered a very D2C friendly product because Indians are not hoarders. मतलब beverage का जो वो है, स्टॉक अप नहीं करते इंडिया में लोग. अगर तुमने शोज देखे होंगे, सिटकॉम्स देखे होंगे वेस्ट में, यूएस में लोग अपने फ्रिजेस में बेवरेजेस रखते ही रखते हैं. मतलब 4-4 5-5 डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट ब्रांड्स के बेवरेजेस होते हैं. इंडिया में ऐसा नहीं होता. इंडिया में मन करा, खरीदा, पिया, खत्म. इसके कारण D2C में बहुत ही ग्रेट वो नहीं माना जाता. So I mean, of course, response wasn't as good as probably someone who is a cosmetic brand, someone who is another FMCG brand would have gotten. But still, it still exceeded our expectations. Our sales went 5-6x easy. 5-6x. So, what were you doing a month before Shark Tank, and what did you do after Shark Tank? So a month before Shark Tank was majorly inventory का होता है यार, कि यार ठीक है आपको भी, you cannot predict how the response will be. What will be the usual trend क्या था आपका? Usual trend यार, तू मान कि अगर हम लोग जैसे शार्क टैंक में बात करी, हम लोगों का पीक था 3.5 लाख 4 लाख 4.1 was around. हाँ 4 एवरेज था. शार्क टैंक हमारा एपिसोड आया ऑन 4th मार्च. वी हिट द सेम फिगर बाय 8th मार्च. मतलब हमारा जो महीने का उस टाइम पे चल रहा था, वी क्लोज्ड इट 8th मार्च को इजी. So I mean easy, like overall month, even barring apart the Shark Tank peak that comes for a week, even apart from that, I think month wise also we'll close this month 4x unless or until we I mean if we crack any institutional deals, then it will be even more. Yeah, so मतलब basically अगर still institutional नहीं मिलता, फिर भी आपकी sales from 4 lakh to 16-20 के बीच में पहुंच चुकी है for 1 month. For 1 month, but this accounts for Shark Tank peak. मतलब जितना मैंने सुना है, एक peak के बाद स्लाइड डिप आता है. वो तो obvious है. सारे स्टार्टअप्स का ट्राई यही होता है कि पीक के बाद जो भी डिप आए, आप कौन से बेस पे आप उसको सस्टेन कर सकते हो. सो आई थिंक हमारा फोकस उधर है. एज ए सेड कि D2C फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं है, तो वेबसाइट के ऑर्डर्स को लेकर खुश होना, Amazon के ऑर्डर्स को लेकर खुश होना, मतलब वो एक बहुत ही शॉर्ट टर्म अप्रोच है. प्रॉब्ली हमारा थॉट है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कैसे बिल्ड कर सकते हैं कि ये जो पीक आई है सस्टेन अच्छे नंबर पे करें. मेक सेंस. तो मेरे को ना ये बहुत क्यूरियोसिटी थी कि आप बेवरेज इंडस्ट्री में ही क्यों कूदे? बिकॉज अनुपम ने भी पिछले सीजन्स में कहा था ना कि बेवरेज इंडस्ट्री का तो शमशान बना हुआ है, एंड आपने पिच में कहा था कि हाँ हम उस शमशान का पार्ट नहीं बनने वाले. Why was that? कि why beverage में ही कूदना था, and why specifically iced tea फिर?
यार तो 2-3 रीजन थे. सो लेट मी गिव यू बैकग्राउंड ऑफ अविक एंड आई. हम दोनों स्कूल के दोस्त हैं. 6th ग्रेड से हम लोग मतलब क्लासमेट्स हैं. एंड 7th 8th में हम लोगों की दोस्ती चालू हुई थी. वी बीन फ्रेंड्स इन 7th 8th एंड नाउ वी आर ब्रदर्स इन बिजनेस. हमारी दोस्ती का जो वो था स्पोर्ट्स था. सो ही यूज्ड टू प्ले टेनिस नेशनल्स. मतलब बहुत ही तगड़ा. ही वाज 7th 8th से ही ATP टॉप 100 टॉप 150 रैंकिंग. मतलब जो भी, मेरे को पता नहीं कि टेनिस की क्या रैंकिंग होती है, बट जो नेशनल रैंकिंग होती थी उसमें वो टॉप 150 टाइप्स में आता था. सो दिस वाज सिंस 7th 8th 9th थी. मैं क्रिकेट खेलता था प्रोफेशनली. आई प्लेड अ बिट फॉर द गुड़गांव टीम. आई प्लेड अ बिट फॉर राजस्थान स्टेट. कैंप करा था राजस्थान रॉयल्स के लिए. मैं नेट बॉलर प्रोग्राम में रह चुका हूँ. सो आई मीन वी टॉक्ड अबाउट दिस इन द टैंक ऑल्सो. ये एडिट हो गया था. हाँ. पर जब हमने अपना बैकग्राउंड बताया था तब वहाँ पे भी बताया था कि मैंने राजस्थान रॉयल्स का कोल्ड्स प्रोग्राम होता है जहाँ पे यू आर विद द IPL टीम फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स. सो आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट इन 11th. सो वो हैवी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड. दिल्ली के हैं तो फूडी तो पूरे हैं ही. मतलब खाना तो Same. चाहिए यार. अच्छा हाँ. टेस्ट के बिना क्या क्या है. And that is 100%. how the Indian consumer is. I mean, even with the growing consciousness, आपको टेस्ट पहले चाहिए and everything else follows. वो है. अब थोड़ा हेल्थ वाइज पीपल आर गेटिंग कॉन्शियस, बट So, स्टिल हम दिल्ली exactly- वालों का तो टेस्ट है ही पहले. Exactly, that was our starting point also. मतलब जब हमने बात करी बेवरेजेस की तो हमने यही कहा, जो तेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, टू आंसर दैट. यार हाइड्रेशन वाज अ बिग पार्ट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन. मतलब आप कुछ ना कुछ बेवरेज पी रहे होते हो. फील्ड पे नींबू पानी, आफ्टर अ गेम यू आर हैविंग एन आइस टी. एंड हम लोग, अविक और मेरा और हमारे एक दो और दोस्त थे. हमारा जो ग्रुप होता था स्कूल के ब्रेक्स में, कैंटीन में आइस टीज वगैरह मिलती थी तो वो पीते थे जाके. 15-20 मिनट की ब्रेक होती थी. कहते थे यार एक आइस टी पी के आ जाते हैं कैंटीन वगैरह से. सही है, सेट है सब कुछ. तो आफ्टर, मतलब ऑल ऑफ दिस कंपाउंडेड आफ्टर द पैंडेमिक व्हेन द न्यूज केम कि यार प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है. मतलब आपको एक चीज बोल रहे हैं और दूसरी चीज बेच रहे हैं. बेसिकली द थीसिस ऑन विच द होल ट्रूथ हैज अ ब्रांड हैज बीन बिल्ट. कि द ब्रांड्स आर नॉट वेरी ऑनेस्ट. They're putting one thing, they are giving you one thing, but it's not the same thing. Showing you something So but हमने selling other. Correct. So हमने भी labels पढ़ना start करा after pandemic, and हमने realize करा यार these beverages that we love, iced teas, lemonades, any other beverage, चीनी पानी है यार ये. हाँ. मतलब इसमें आइस टी में टी ही नहीं है, लेमनेड में नींबू नहीं है. मोस्ट जगहों पे आप जाओगे, अगर आप किसी रेस्टोरेंट कैफे में जाते हो, आप उनके पीछे देखना एक सिरप होता है चीनी का जिसमें फ्लेवर होता है, एंड वो डाल के आपको दे देते हैं. और इंडिया का, मतलब द बैड पार्ट इज कि जब लोग, जो हमें नेगेटिव रिव्यूज आते हैं, वो कहते हैं यार आप ऑथेंटिक नहीं हो. हमने कहा यार मतलब इस लेवल पे चीनी पानी ने अपना टेस्ट सेट कर दिया इंडिया के पैलेट पे कि जो रियल ऑथेंटिक चीज है, जो नेगेटिव रिव्यूज है, वो उसको ऑथेंटिक नहीं बताते. तभी वो जो आफ्टर टेस्ट दैट अनुपम सेड कि देयर इज अ बिटर आफ्टर टेस्ट, दैट्स फॉर द रियल ब्रू, राइट? एंड वो That's लोगों what को the पता real नहीं. brew is. मतलब वही है, and it is, मतलब Anupam is also, he has a great palate in general because he's doing a lot of testing and he's very aware as a consumer. वो bitter जो चीज है वो normal consumer को तो ऐसे पता भी नहीं चलेगा. Yeah. Because it is very well brewed, the products that we have, etc. I mean, I won't delve into that. But beverage का ये reason था कि हमने कहा कि यार इसको देख, मतलब इस इंडस्ट्री में कूदते हैं थोड़ा खुद के बेनिफिट के लिए. और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये था यार टेस्ट मेन होना चाहिए, और फिर देखते हैं, और रियल इंग्रेडिएंट्स के साथ टेस्ट मेन होना चाहिए. तो दिस बिकेम द ethos that we'll the core of our ingredients needs to be extremely real. अगर हम आइस टी प्रॉमिस करें, इट शुड हैव टी. वी वेंट वन स्टेप फर्दर. हमने व्हाइट रिफाइंड शुगर हटा दी कोई भी. वी स्वीटन द प्रोडक्ट्स यूजिंग हनी एंड देसी खांड श्री, which is still, मतलब FSSAI norms still put it under sugar. Our thought is कि यार unprocessed unrefined sugar है. I mean, आप क्या कहते हैं, इंडिया में जो कहावतें चलती है कि यार आपने सुना होगा कि यार ये घी खाया हुआ बंदा है, ये गुड़ खाया हुआ बंदा है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब वही है. तो ये वाली जो पुरानी वो थे थॉट्स, हमने कहा यार चीनी तो बहुत केमिकल्स के साथ भी गो थ्रू कर रही है. Yeah. प्रॉब्लम शुगर को नहीं, बट वो केमिकल प्रोसेसिंग और वो सारे जो टच पॉइंट्स है उनको कट डाउन करके एक बेटर सोर्स ऑफ स्वीटनर चूज करा है. That makes sense because मेरे घर पे भी white sugar is not a part of. अब सिर्फ खांड से, चीनी भी खांड में बनेगी, कॉफी चाहे कुछ भी हो डलेगी खांड ही हमारे घर पे भी. So it's basic premise because white sugar has come after a long time and it's too processed to realize. It's too processed. Yeah. So I mean, we are working क्योंकि like this is the whole thesis, to also make better for you beverages, right? We are also trying if we can even maintain the taste while cutting the sugars further.
ऑलरेडी जैसे हमने शार्क टैंक में बात करी, हमारा शुगर कंटेंट कोक से या फिर हाफ किसी बड़े सोडा कंपनी से हाफ तो चलो 30-40% लेसर है, इफ आई एम बीइंग वेरी एक्यूरेट। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम अपना जो अभी हमारा लेवल है हम उसको भी हाफ करें। सो वी आर वर्किंग ऑन इनोवेटिंग दैट मेक्स व्हाइल मेंटेनिंग सिमिलर टेस्ट। तो फिर आपका R&D प्रोसेस क्या रहता है? हाउ डू यू डिजाइन अ प्रोडक्ट और हाउ डू यू फिगर आउट कि हाँ भाई अब लेट्स जस्ट कट डाउन ऑन शुगर एंड फॉर्मूलाज, फॉर्म मोर न्यू फ्लेवर्स स्टफ? यार R&D प्रोसेस ना, मतलब मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही कुछ हाई फाई नहीं है, एंड दिस इज द रीजन दैट आवर प्रोडक्ट्स टेस्ट गुड आल्सो बिकॉज इट्स बिल्ट इन द कंज्यूमर रेल्म। इसका मतलब ये है कि क्या होता है, मोस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेट्स से कल कोई बड़ी कंपनियां उसको निकालना हुआ कि यार आइस टी निकालनी है, उनका होएगा कि उनके पास फूड टेक्नीशियंस होंगे, फूड क्वालिटी कंसर्न वाले पीपल होंगे जो लैब में प्रोडक्ट बनाते हैं, वो जाएंगे पूरा ब्रेक मतलब अपना कुछ ना कुछ करेंगे, लैब वगैरह पूरा इक्विपमेंट लेकर फ्लेवर वगैरह के साथ बनाएंगे और प्रोडक्ट रोल आउट करेंगे और फिर उनकी टेस्टिंग वगैरह होती है। दिस इज द जनरल प्रोसेस। हाउएवर फॉर अस इट्स द अदर वे अराउंड। मतलब हमारे जो फ्लेवर्स है, टेस्ट है, बिकॉज वी आर द वंस हु डू इट। सो इनिशियली जो हमारी पहली आइस टीज थी, अब एक और मैंने करा, फूड बैकग्राउंड नहीं था, थोड़ी सी फूड साइंस खुद को सिखाई, अब एक ने खुद को सोर्सिंग सिखाई, बहुत हाई लेवल की, एंड थैंकफुली सो कि एकदम लैब टेक्नीशियन वाले लेवल की भी नहीं सिखाई अपने आप को। कंज्यूमर रेल में बनाया, पहले टेस्ट पे फोकस करा, 10 कंज्यूमर्स को पिलाया, मतलब सड़क पे जाके बेचे थे इनिशियली हमने क्या कहते हैं, जो पहले लॉट्स निकले थे हमारे किचन से, ये सब हमने बस ग्लास बॉटल्स में डाले थे, सड़क पे बेचे थे और फीडबैक लिया था। बेचने का रीजन ये था और सैंपल फ्री में देने का रीजन, ना देने का रीजन ये था कि यार इंडिया में ना फ्री सैंपल देकर ना फीडबैक जेन्युइन नहीं मिलता है। एक तो हम 20-21 साल के लौंडे दिल्ली में और ऊपर से फ्री में दे रहे हैं, तो ना इंसान का वही है कि फीडबैक जेन्युइन नहीं आएगा कि यार चलो बेटा करो। हमारा था कि यार अगर कोई 50 रुपए दे तो गाली तो जेन्युइन देगा कि अबे यार ये क्या पिला दिया। तो उसके साथ हम ऐसे ही होता है जनरली कि अभी क्या है कि थोड़े बहुत कॉलेज के दोस्त है, कुछ भी नया बनता है 10 लोगों को पिला देते हैं। मतलब कॉलेज के लोगों को बोलने, मतलब जो हमारे 10, 15, 20, 25 लोगों का इमीडिएट फ्रेंड ग्रुप उनके दोस्तों का है, बोल दिया उनको कि यार फोमो ने नया लॉन्च करा है, पीकर देखो। अगर अच्छा इंकरेजिंग रिस्पॉन्स नहीं आता, हमें पता है कि वर्क की जरूरत है, उनको ऑलरेडी आप बोल चुके हो कि यार ये लॉन्च हो गया है, तो वो लोग भी अच्छा लॉन्च हो गया, आप उनको भी लैब, आपके इवन तो लैब रैट्स है बट आप उनको लैब रैट्स की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, आप कह रहे हो कि यार ये क्या कहते हैं पहला सेट ऑफ लॉट है, पीकर देखो। तो उनका भी रहता है कि अच्छा फीडबैक आता है उनसे, अगर बहुत इंकरेजिंग नहीं लगता है तो हमें लगता है कि यार फ्लेवर पे काम करा जा सकता है। सो दिस इज हाउ वी गो अबाउट डेवलपिंग द प्रोडक्ट्स टू सम एक्सटेंट एंड गेटिंग द फ्लेवर राइट। मेक सेंस। नहीं वैसे भी ना कॉलेज के बच्चों को कोई बहुत ज्यादा सीरियस लेता नहीं है आज की डेट में, चाहे कभी भी हो जाए, बट ये है कि अपने दोस्त गाली देंगे तो बहुत जेन्युइन ही देंगे और सीधा मुंह पर देंगे, वो सोचेंगे नहीं देने से पहले। यार वो तो बात है ही, प्लस मैं कह रहा हूँ कि आजकल अगर यूथ बेस्ड ब्रांड बना रहे हैं, हमारा प्रॉब्ली एक बात है कि आज के डेट पे कॉलेज स्टूडेंट्स के पास बहुत ग्रेट पैरिटी नहीं है कि वो हमारे एटलीस्ट 100 रुपए की बॉटल के रेगुलर कंज्यूमर्स बन पाए, बट टेस्ट तो उनको बेस्ट समझता है। मतलब दे आर द हाईएस्ट कंज्यूमर्स ऑफ एनीथिंग व्हिच इज F&B राइट। अगर वो कोई रेस्टोरेंट्स हो गए, कैफेज हो गए, टेस्ट उनको समझता है, बाकी सब कुछ अपार्ट जो गेटिंग द टेस्ट राइट वाली बात हो गई। एंड इवेंचुअली आई मीन ऑल ऑफ दीज पीपल, स्मार्ट माइंड्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, IITs, IIMs, etc. Eventually they'll be the consumers once they are into corporates or once they have their own thing. Yeah, makes sense. So there was this similar brand with sugar that came on Shark Tank. आपने ठेका के बारे में सुना है ना? That has grown tremendously. That is coffee though. Yeah, that is coffee. They are teas. That is you are teas, they are coffees. And the fact is कि their growth has been so drastic. उन्हें funding नहीं मिली थी. And वो होता है ना हमेशा it comes कि the failures of sharks that they did not fund. Yeah. And मैं personally am a coffee lover. तो when I tried ठेका for the first time, I was like मैं अपनी जेब खाली कर सकता हूँ, because that is also a premiumized brand. वो भी 150-175 के अराउंड बेचते हैं. Similarly, Coolberg is also a brand जो premiumized fruit beers बेचता है, वो भी 100 रुपए की है. Coolberg, हाँ मतलब पर Coolberg मतलब beer segment में इतना premiumized नहीं है, it is very massy still. Yeah. क्योंकि तुम अगर beer देखोगे, entry level beers are also 100-150, मतलब 100 के नीचे तुम्हें कौन सी beer मिल रही है? हाँ, and Coolberg mass beer, Corona is yeah. तो आपका target audience is basically youth, so आप कह रहे हो? यार so हमारा target audience by its nature generally anyone who's below the age of 35 or 40 है.
Also because it's more of a Western concept कि पॉपुलर इंडिया में मेजरली रेस्टोरेंट्स कैफेज के कारण है यार कि एक मॉकटेल वाले सेगमेंट में आइस टी होती है, लेमन पीच आइस टी मिलती है. तो पर वो रेस्टोरेंट के साथ लेने वाला कंज्यूमर है, तो एक तो वो कंज्यूमर बन जाता है. दैट्स व्हाई वी आल्सो स्टार्टेड विद होरेका. नाउ वी वांट टू गो डीप डाइव इनटू द कंज्यूमर स्पेक्ट्रम. But agar I give you clarity regarding who my customer is or who am I targeting it to first, anyone who is in school, college, corporate, basically जो काम का समय है ना 12 नून से लेकर 7 बजे के बीच में आप जो बेवरेज पीते हो, आप अपने शाम की चाय और सुबह की कॉफी के बीच में जो बेवरेज पीते हो कि यार पानी बोरिंग लग रहा है पर कुछ हाइड्रेशन के लिए चाहिए. इंडिया इज अ वार्म कंट्री. We need something to quench our thirst. That shouldn't be as sugary or as detrimental to our health as sodas and colas. And it should be like aspirational. So that anyone who has this thought is our TG. Makes a lot of sense. Okay, so deep dive कर लिया बहुत डिटेल में. मेरे को ना आपका शार्क टैंक एक्सपीरियंस जानना है कि how fun was that and what was the actual कि हाँ इतने घंटे की पिच थी, इतना एडिट होके आया. क्या चीज आपको पसंद आई कि ये एडिट में क्यों नहीं गया, और क्या चीज आई कि हाँ ये एडिट में गया तो अच्छा लगा. What was that like? Yeah, so Shark Tank experience was really good. I mean, application process is fairly long. मतलब काफी लंबे टाइम का वो होता है. आप एक दिन एप्लीकेशन डालते हो, 2-3 राउंड्स को क्रॉस करते हो. सोनी आपको एकदम ही कोई बिना नोटिस दिए 5-10 दिन पहले बोलता है कि आ जाओ बॉम्बे आ जाओ. पहली चीज तो मेरे को क्या कहते हैं, ये थोड़ा वो हो गया था, मेरे को फोमो हो गया था. मैं डिसअपॉइंटेड था जेन्युइनली कि कॉल करके किसी ने मेरे को ये नहीं बोला मुंबई आ रहे हो आग लगा देंगे. तो वो होता है ना कि सोनी का शो है, आपको कोई कॉल करके बोलेगा मुंबई आ रहा है आग लगा देगा. वो नहीं हुआ. उन्होंने बस बोला कि हो सकता है आना है आ जाना. मतलब आना होगा आ जाना. समझ गया मैं. एंड 5-10 दिन पहले लेजिट बोला था. सो बहुत ही लॉन्ग नोटिस भी नहीं मिलता कि आप नेशनल टीवी पे पिच करने जा रहे हो और आपको 5-6-7 दिन पहले बता देते हैं और बस फिर आप पहुंचते हो बॉम्बे. शूट के टाइम पे बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है. सो द शार्क टैंक टीम वर्क्स लाइक अ स्टार्टअप इन इट. you're back. Good to go? Yeah. So मैं ये कह रहा था कि वो जिसको भी चांस दे रहे हैं उनका भी है कि they can optimize the pitch that is going into the tank. So I mean they are very helpful with the inputs that they give. कि यार तुम ऐसे बेटर कर सकते हो, प्रॉब्ली ये चीज़ अपने पिच में इंक्लूड कर सकते हो. सो सजेशंस बहुत अच्छे देते हैं एंड दे आर वेरी हेल्पफुल इन दैट सेंस कि बिकॉज दे आर इन द इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड. सो दे नो व्हाट वर्क्स ऑन टीवी, व्हाट कंज्यूमर्स are the type of content that consumers are consuming, all of that. So in that sense there are some good suggestions. Yeah, I mean that is about the experience behind the scenes. हमारी पिच थी 1.5 घंटे टाइप की थी, 20 मिनट आया कंसाइज होके. You kind of feel nervy before going into the tank, but एक दो चीजें जो बहुत ही तगड़ी हुई वो ये थी कि so the walk which is your walk into the tank वो 2-3 बार पहले शूट हो जाती है. सो एक ये चीज बहुत ही कंफर्टेबल हो जाती है कि यार आपने वो जो गेट खुलने से लेकर टैंक के अंदर जाने वाली वॉक है ना, आप वो 2-3 बार कर चुके होते हो. अगर आप वो पहली बार करो तो आपकी फटी रहे कि यार अंदर जाएंगे क्या होएगा क्या नहीं होगा. पर आप वो सेम चीज 2-3 बार जब कर चुके होते हो तो आपके ना नर्व्स वहां पे सेटल हो चुके होते हैं. क्या ठीक है, ये तो अंदर जाके देखते हैं, ये चीज तो 2-3 बार कर ली है, तो वो एक अच्छी बात होती है. सेकेंडली इन बिटवीन पिचेस या फिर मतलब लेट्स से शार्क्स का लंच टाइम है, कुछ है हाईटी टाइम है, तो बिटवीन पिचेस कुछ गाने वाने बजने चालू हो जाते हैं. आई मीन अमन इज देयर तो वाइब तो रहती है, तो पता नहीं कितना वो बोट के स्पीकर्स अंदर मार्केट करता होगा, बट गाने वाने बज रहे होते हैं. एंड हम बाहर खड़े हुए थे, पूरी दिल्ली वाली वाइब थी कि वाइट ब्राउन ब्लैक बज रहा है, चलिया बज रहा है, ये थोड़े पैर चलने गए थे हमारे, तो एडी साइड में कहता नहीं यार नाचते हैं, तुम लोग भी नर्वस फील. असिस्टेंट डायरेक्टर जो वहां पे खड़े थे तो कहते नहीं नाचते हैं, तुम लोगों को भी अगर मतलब कोई नर्वसनेस फील हो रही होगी वो चली जाएगी, निकल जाएगी. तो मैंने कहा कि आप तो हमें बताओ माहौल यार खुलने का मौका दोगे हम तो फैल जाएंगे. तो हम तो वहां पे नाचे, मतलब 10-15 मिनट नाचे हम लोग बिफोर एंटरिंग द टैंक. तो फिर नर्वसनेस नहीं फील हुई बिल्कुल. So I think a lot of people have responded with great energy and everything. So I think energy का थोड़ा सा
this was the context कि उससे पहले हम already उस vibe में थे कि अंदर जाके फोड़ देंगे. Yeah, that's great. और एक और था कि you got ऐसे 3 similar offers, but particularly I wanted to talk about 2 कि there was this given by Anupam and Aman, and then you had Namita and Ritesh. And फिर आपने अमन और अनुपम का चूज करा, राइट? तो एक उनका क्या रीजन था? दूसरा, why did you let go of Ritesh? Cause the hotel chain होरेका का सबसे बड़ा network, he has it, and that would have also given you tremendous growth. But फिर then why Anupam and Aman and not Namita and Ritesh? Yeah, true. And I mean the internet is also divided on this. मैं मेरी टीम बता रही थी कि YouTube पे बड़े सारे कमेंट्स हैं, थोड़े बहुत मैं पढ़ रहा था, थोड़े बहुत LinkedIn पे आए थे कि everyone is मतलब half. Some people are saying why not Namita Ritesh. Some people are saying you should have gone with Namita Ritesh. Some people are defending us saying यार अनुपम अमन लेकर सही करा. The thing is कि all of the sharks they bring something on the table, right? I mean we would have wanted all of them, all the deals that we got, and हमने suggest भी करा था, right? कि पांचों आ जाओ. But they did not budge on that, so we did not push a lot क्योंकि over negotiation भी sometimes it's detrimental. So उस time पे I mean it's very brevity is your friend, right? मतलब तुम जितनी जल्दी decision ले लो उतना तुम्हारे लिए बढ़िया है. वो quick decision आप gut पे ही जाते हो mostly. So उस time पे I'll tell you what the gut was saying at that time. हमारा thought था कि the inclination towards Anupam and Aman was majorly because एक तो Anupam was highly engaged in the pitch. I mean जो 1.5 से 2 घंटे का वो था, अगर हमारी energy X level थी तो Anupam was matching that energy to such a great extent. I mean he was dissecting the business, he was asking all the kinds of questions, he was grilling us, and then he was the first person to give us an offer. So we could sense some passion resonance there. Secondly, we agreed on the fact कि यार consumer oriented business तो बनाना है. I mean Horeca we've been doing for a while. The margins are lower. Probably Horeca में burn नहीं होता है. आप margins बना सकते हो. Consumer end पे burn होने का chance है if you're not putting your SOPs and business operations right. और otherwise अगर आपका business decision क्या है, क्योंकि burn is completely a brand decision कि burn करके कितना grow करना है. So consumer में वो chance है, but हमारा था कि यार consumer domain में build करना है, which was a high inclination for Anupam and Aman. That was one. Secondly, Anupam was someone who convinced Aman. मतलब वहाँ पे भी टैंक में 1 सेकंड का वो आया था आजा, वो अनुपम gave that, मतलब वो जो edit हुआ वो 1 सेकंड का आया, but टैंक में it was a 30 second 45 second conversation between them कि कर लेते हैं. तो हमारा था कि यार someone's convincing someone else who is also in like 50-50 60-40 mood कि यार करना तो है, टीम अच्छी लग रही है, मजा आएगा, but is not very sure of the product because of previous experiences. So वहाँ पे मतलब एक चीज edit हो गई थी टैंक में. Aman had invested in a few similar brands पहले. Okay. So that was why And it was not a good experience. So he was skeptical about investing. Aman was iffy about कि यार क्या सीन है, कैसे आगे चलेगा. तो थोड़ा हम कन्विंस कर रहे थे, अनुपम ने थोड़ा कन्विंस कर दिया, and Aman was also on board. And like he's someone who's made a D2C brand grow in the consumer spectrum and grow it like crazy without entailing burn. जो एक क्रेजी नॉलेज हमको लगती है कि अभी तक 2 थीसिस हैं कि यार आप या तो बर्न करके बहुत तगड़ा ग्रो हो जाओ या स्लो पेस पे आप प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करो. Aman has broken this barrier and grown at a massive scale while also maintaining profitability. So we felt कि यार knowledge and learning perspective में भी ये बहुत तगड़ी चीज होगी. I mean I have given like a 5-minute sermon on this, but मतलब उस टाइम पे ये सारी चीजें compound होके gut feel बन गई थी हमारी. If I need to break down my gut feel कि वो क्यों थी उस टाइम पे अविक और मेरी, तो yeah. Makes sense. So now the Shark Tank's done. अब due diligence के बाद आपका you will get the funding as well in the bank and you are just 21. ठीक है. तो ऐसे 21 साल में इतना कुछ accomplish करने के बाद क्या feel होता है and what is the plan ahead? ऐसे not 5-year plan, 10-year plan कुछ नहीं. What is your vision with FOMO? Yeah, so I mean, एक तो I think in entrepreneurship there is no age barrier first of all, and secondly fundraisers are celebrated
बट आई थिंक इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी, राइट? मतलब अभी हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है टू डेंट द लैंडस्केप. इससे पहले वी वर हेडलेस चिकन्स रनिंग अराउंड इन अ मार्केट कि यार एफएमसीजी में एंड स्पेशली बेवरेज में 15-20 साल के एक्सपीरियंस के बाद लोग स्टार्ट करते हैं. मतलब जो फाउंडर्स मैं यहाँ पे बात करता हूँ, कोई फाउंडर्स है बेवरेजेस के, वो 5-10 साल एचयूएल में रह चुके हैं, 5-1 साल टाटा कंज्यूमर्स में रह चुके हैं, एंड उसके बाद वो स्टार्ट कर रहे हैं. तो नॉलेज में और नेटवर्क में बहुत ही डिसप्रपोर्शनेट डिफरेंस है. तो वही है कि मतलब नाउ वीव गॉटन अ चांस टू एक्चुअली बिल्ड समथिंग क्रेजी. तो आई थिंक वो वाली बात है कि अकॉम्प्लिशमेंट तो अभी क्या ही है, स्टेपिंग स्टोन है. सेकेंडली व्हेन आई टॉक अबाउट फोमो के साथ क्या प्लान है, आई थिंक फोमो के साथ मेजर प्लान ये है. सो आई of course, like we want to make it a big brand. Yeah. But at a more deeper level, if we can bring about any impact at a macro scale, that is something we really want to do. कि यार even if the bigger brands feel the threat of probably changing their ingredients, कि यार ये लोग अब real offering देने लग गए हैं and better sweeteners दे रहे हैं, we need to get our acts right. At least the consumers win in that sense, right? कि consumers start getting what they want, what's and good for at them. great taste, what's good for them, what's better for them, and at great taste, right? For example, I'll give you an example that happened before Shark Tank also. So 2-3 months back, there was this company that diversified into the iced tea space. Okay. Not particularly just iced teas and juices space. I won't reveal the name of the company क्योंकि मेरे को सीन नहीं पता है. क्या होता है कि मेरे पास अभी कोई पीआर मैनेजर नहीं है, सो अभी मैं खुद का ही पीआर मैनेजर हूँ. कोई स्ट्रेस नहीं, कोई रिस्क तो नहीं. हाँ, सो वी सोर्स आर खांडसिरी फ्रॉम लोकल मिल्स, राइट? अनरिफाइंड शुगर. We've been working with our suppliers since a year, मतलब since the day we started. So that big company, I mean it's a big company who plays at a national scale. मतलब आप एयरपोर्ट्स पे जाओ, मेट्रो पे जाओ, किसी रिटेल स्टोर पे जाओ, रेस्टोरेंट्स पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, उनके प्रोडक्ट्स मिलते ही मिलते हैं. सो व्हेन दे वर डाइवर्सिफाइंग इनटू दिस न्यू कैटेगरी, आवर सप्लायर टोल्ड अस कि सर ये आपकी बॉटल लाए थे, एंड इन्होंने आपकी बॉटल हमें देकर कहा कि इसमें जो इंग्रेडिएंट डलता है वो चाहिए. सो दैट इज द लेवल ऑफ इम्पैक्ट कि यार. And I think that company is procuring 6 to 10 tons of Khansari from our suppliers now. Point being, I mean, this is not हमारे लिए बस ये एक ego booster and doesn't help in the business landscape. यार competition बढ़ गया, but it's a victory for consumers. कि यार आप देखो, white sugar 6 से 10 टन मार्केट से हट गई है. मतलब जो probable potential of white sugar 6 से 10 टन का था, it's been replaced. Yeah. So that is the thought that consumers win somewhere. And the second more bigger vision that we hold for FOMO is that abhi tak iced tea space, hydration beverage space has been run by foreign brands. Indian brands abhi tak nikle nahi hai that have been celebrating Indian hinterlands. True. I mean in all of this chaos of not using real ingredients and all of this industrialization, this is मतलब वही है ना कि cost low रखनी है, सस्ते पे देना है, केमिकल्स यूज करके सस्ते पे दे सकते हैं, कंज्यूमर को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, पता चलेगा तो दे देंगे. तो इसके चक्कर में क्या हुआ है कि इंडियन हिंटरलैंड से जो सोर्सिंग हो सकती है वो नहीं हो रही. आई मीन इफ पीपल सर्च इंडियन टी फार्मर्स के बारे में आर्टिकल्स टुडे, देयर कंडीशन इज रियली बैड. आई मीन ऑक्शंस की दिक्कत है, एक्सपोर्ट्स फॉल हुई हैं कुछ लेवल पे, एंड आर्टिकल्स आर ग्रूसम. एंड वी टॉक टू दीज फार्मर्स on a ground level because we source our teas from the local farms of Siliguri and Assam. So when you hear about that, यार उनकी condition of, and यही reason है, मतलब we are sourcing some amount of tea from them, right? Yeah. So I mean, as soon as you start sourcing from the Indian hinterlands, you empower the people working on the grassroots as well. Yeah. So I think that is the bigger picture of giving real things to consumers. And changing this landscape of giving chemicals to consumers while empowering the people at the grassroots. And foreign brands को थोड़ा सा disrupt करने का inclination तो है ही यार. अब मतलब आया तो दिल्ली में कुर्सियाँ उछलना तो नॉर्मल है. वो तो है. नहीं इट्स ट्रू कि फॉरेन ब्रांड्स को साइडलाइन जैसे अमन ने करा था, आई एम श्योर फोमो भी कर ही देगा बाकी जितने बेवरेज इंडस्ट्री में, आइस टी इंडस्ट्री में.
आपने अपना ब्रांड कॉलेज फाइनल ईयर में स्टार्ट किया, थर्ड ईयर में DU में, तो उस टाइम क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करा? वाज इट योर, इट्स योर फर्स्ट ब्रांड राइट, इट्स योर फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप थिंग, तो True. क्या क्या स्ट्रगल्स आपने फेस करे एंड अ फ्यू लर्निंग्स की, अगर आप अभी तो स्टिल यू बिन लाइक 2 साल हुए आपको इन दिस बिजनेस अराउंड, तो बट स्टिल इफ यू हैड अ स्टार्ट गिवन फ्रॉम द स्टार्ट, तो कौन सी गलतियां आप वापस नहीं करते? यार एक दो गलतियां, मतलब मैं गलतियां तो क्या ही है, लर्निंग तो रहती है, मतलब एवरी बिजनेस हैज इट्स ओन लर्निंग्स राइट। मतलब आप कोई भी स्टार्ट कर रहे हो, अगर वो गलती नहीं करता तो कोई और करता, ये 100% होता। सो आई टेल यू द स्ट्रगल पॉइंट दैट वाज देयर इनिशियली when you're starting from college at a young age. As I said, the industry is run by people that have a lot of experience. Yeah. पहले तो confidence नहीं आता to suppliers and manufacturers in general. People are not as willing to work with you because यार quantity देंगे नहीं देंगे, कितना supply हो पाएगा, कितनी regularity रहेगी, क्या predictable business है. So terms of trade are pretty bad. You don't, I mean आप upfront advance में सब कुछ खरीद रहे हो, आपके capital requirement बहुत heavy है. हमने इनिशियली जो चीज़ फेस करी थी, हमने रेसिपी बना ली पर कमर्शियलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि मैन्युफैक्चर कोई हमारे साथ काम नहीं करना चाह रहा। मैन्युफैक्चरिंग इज ऑलवेज डन एट एन MOQ, कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड होती है कि यार इतनी बॉटल तो बनेंगी या इतना प्रोडक्ट तो बनेगा ही, वो हो नहीं रहा था। उस चक्कर में, उस हेस्ट में हमने अपनी खुद का एक छोटा सा यूनिट लगा लिया था। आई मीन R&D, अब उसको R&D यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, बट उस टाइम पे हमने खुद का छोटा सा यूनिट लगाया था कि यार एक स्टार्ट तो मिले। उधर मतलब that was some expense that we incurred upfront, and हमने उस चीज से बहुत जल्दी सीख भी लिया कि unless and until you can give yourself 20 days of production, खुद का प्लांट लगाना is a loss making operation. I mean that was a great start for us. It catapulted us to reach the volumes that we could take to the manufacturer saying कि यार अब महीने की हम इतनी करते हैं, अब हमारे साथ काम करो. So that's why we downsized it. I mean more than गलती से ज्यादा वो क्विक लर्निंग थी, एंड हमने उस पर क्विकली एक्ट करा कि यार ठीक है, लेट्स नॉट प्रेस एट दिस, हमने लगाया, हमें चांस मिल गया, लेट्स जस्ट डाउनसाइज दिस इनटू एन R&D यूनिट, थोड़ा सा लॉस मशीनरी के सेल पे खा लेंगे, बट मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करके बिजनेस आगे बढ़ा। लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल है फिर वो, लॉन्ग टर्म मतलब प्रॉफिटेबल से ज्यादा ऑपरेशनली एफिशिएंट है। यार मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग सूट, प्रॉब्ली मार्केटिंग इज अ स्ट्रॉन्ग सूट, ब्रांडिंग इज अ स्ट्रॉन्ग सूट, एंड डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन लर्न ऑन द गो। सो दैट वाज द थॉट बिहाइंड इट। सेकंड, मतलब मैं एक लर्निंग बोलूंगा कि जब सो दिस इज फ्रूगैलिटी इज ग्रेट, एज अ कॉलेज स्टूडेंट द लैक ऑफ मनी इज रियली हेल्पफुल, क्योंकि इवन विद द लैक ऑफ मनी हमने यूनिट इकोनॉमिक्स फर्स्ट डे से बेटर करने के लिए बहुत ही हाथ जलाए थे। क्या होता है कि सब चीज़ों में MOQ होता है इस इंडस्ट्री में, FMCG वर्क्स ऑन MOQs, इट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल राइट। तो हम लोग महीने की 1000 बोतल नहीं बेच रहे, लेबल हमने 16,000 प्रिंट करा लिया क्योंकि लेबल सस्ते होते हैं। आपको लगता है कि यार ठीक है ये तो बर्न नहीं है, आपको आधे ₹1 में लेबल मिल जाएगा, 16,000 का एक्सपेंस है, इवन तो वो भी कॉलेज स्टूडेंट के लिए वो भी बहुत ज्यादा है। तो पर हमारा था यार ग्लास बॉटल में लोग कह रहे हैं कि आप 50,000 ग्लास बॉटल लो या फिर X नंबर ऑफ बॉटल लो, और ग्लास बॉटल महंगी है, मतलब 3-4 लाख के एक्सपेंस के सामने 16,000 का हमें लगा कि चलो यहाँ पे कॉस्ट बचा लेंगे। अब 16,000 से आप कम प्रिंट कराओ, आप 500,000 प्रिंट कराओ तो 2-3 रुपए का लेबल पड़ रहा है। हम कह रहे हैं यार ये तो यूनिट इकोनॉमिक्स गलत हो रही है, हमारी बॉटल हम 100 की बेच रहे हैं, बनी है 50-60 की रही है। प्रॉब्लम ये है कि अब आज की डेट पे भी वो वाले लेबल हमारे फैक्ट्री के फ्लोर मैट की तरह काम आते हैं, मतलब हमारे वेयर हाउस की फ्लोर मैट की तरह काम आते हैं, क्योंकि यार इतने यंग स्केल पे आप क्या कहते हैं 1000 बोतल बेच रहे हो, बहुत चेंजेस के थ्रू जाती है कंपनी, इंग्रेडिएंट चेंजेस के थ्रू जाती है, कंज्यूमर रिस्पॉन्स के फीडबैक के बाद बहुत चेंजेस होते हैं। आप मैन्युफैक्चरर चेंज करते हो तो लेबल चेंज हो ही जाता है ऑटोमेटिकली, FSI नॉर्म्स के अंदर आपको करना पड़ता है। तो आई मीन यही बात है कि आई थिंक वो इनिशियल यूनिट इकोनॉमिक एफिशिएंसी हमें एक्सेल पे रख लेनी चाहिए थी, इवन दो एग्जीक्यूट, मतलब वो था कि यार कुछ करना है, एंड वही होता है कॉलेज स्टूडेंट का, यही होता है, जोश ज्यादा होता है ना, करते हैं। तो आई थिंक वही है कि जोश में होश नहीं खो बैठना, वो एक इम्पोर्टेंट बात है। बट मैं वही कह रहा हूँ कि यार ये गलतियां अनअवॉइडेबल है। एज समवन हु हैज एन एड्रेनलिन ऑफ अ 20-year-old और अ 19-year-old, कहीं ना कहीं तो करोगे यार ये गलती, और नहीं करोगे तो सीखोगे कहाँ। 100%, मतलब आदमी गलतियों से ही सीख के समझेगा ना कि हाँ भाई आगे चल के क्या गलती नहीं करनी है, टाइप्स वही है। एंड ऑल्सो जैसे आपने बोला कि कॉस्ट कटिंग करी, मैंने आपकी पिच में देखा था दैट यू यूज्ड AI एज योर डिजाइनर, ठीक है, हाउ डू यू यूज इट, वो बहुत इंटरेस्टिंग था, बिकॉज हाँ एग्जैक्टली, तो ये पिच है, दैट्स पिच राइट,
Yeah, that's speed. So this is हम मतलब ये टैंक पे नहीं थी. So we are, हाँ I mean, we're trying to launch a 40 rupee version ओह in the market of our bottles. 40 रुपए में पेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं थोड़े मास प्रीमियम मार्केट को और वो अफोर्डेबल बनाने के लिए. सो मतलब हाउ डू यू यूज cause AI in the designing space मतलब tech space तो हटा दो tech space का there is no limit of AI getting into it but how honestly I genuinely wanted to ask a person in the industry कि AI कैसे काम easy कर चुका है on an actual level cause जितने left right center myths हैं या beliefs हैं मेरे को उससे किसी को पता नहीं लगेगा if you are actually there in the industry उससे बेटर आइडिया लग जाएगा ना कि हाउ मिड जर्नी है लियोनार्डो ये आया है कि डिजाइनिंग में कैसे फर्क पड़ रहा है. Right. So, I mean, I'll give you an easy breakdown along with costs, right? आज की डेट पे कोई एंट्री लेवल अच्छा डिजाइनर जो एक अच्छी ब्रांडिंग कर सकता हो और आपके विजन को एग्जीक्यूट कर सकता हो फॉर 1 or 2 labels, even for as low as 2 or 3 labels, you won't find anyone below 15 to 20,000 if they are a good person and they are not a fresher. I mean, and बल्कि मैं कहूँगा कि एक्सपीरियंस भी ज़्यादा नहीं होएगा इनका. मतलब सेकेंड ईयर ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, थर्ड ईयर ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, and they ask for 15-20,000 easy if they have some possible level of skill set. हाँ, which is भाई यार ये हमारे लिए बहुत महंगा था. मतलब हमने जब स्टार्ट करा था एंड ब्रांडिंग तो इनिशियली पार्ट होता है, आप लेबलिंग ब्रांडिंग तो बहुत इनिशियल करते हो. तो हमने जब स्टार्ट करा था 10-10 हज़ार पहले खुद डाले थे खुद के पैसों से, उधर से थोड़ी बहुत R&D करी थी, फिर 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार बढ़ाया था. तो मोटा मोटा 50-50 हज़ार के कैपिटल से स्टार्ट करा था सैम्पलिंग. कंज्यूमर रिस्पॉन्स लिया था, फिर अपने पेरेंट्स के पास मतलब थोड़ा, फिर पेरेंट्स के पास गए. ये वाला हमने थोड़ी सेविंग्स करी थी कि हम कॉलेज में रहते थे, रेंट का अलाउंस आता था 2-3 महीने के, और इतना हो गया था कि यार 40 से 1,000 डाल सकते, डाल दिया. फिर पेरेंट्स से बात करी कि वी ऑल्सो मतलब कि ये चल रहा है, कंज्यूमर्स को सही लग रहा है, करना है, तो थोड़ा और मिल गया. एंड एस्टैब्लिश करने में एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल लगा. सो जब आप इतने लो कैपिटल पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इतनी हाई है, अगर आप ब्रांडिंग वगैरह में भी खर्च करने लग गए तो यार 1 करोड़ 2 करोड़ सब कम है, और इतना तो था ही नहीं स्टार्ट करते टाइम. तो हमने क्या करा कि ब्रांडिंग खुद करी. इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ AI, Canva and Adobe Illustrator. So AI is not, as per my experience till now, AI isn't as good for whole label designing till now. बिकॉज क्या है कि आप एक प्रॉम्प्ट दोगे, एक विजन दोगे, आपको वो लेबल बनाकर देगा, पर किसी ना किसी एलिमेंट में आपका व्यू AI के व्यू से डिफरेंट होएगा, अनलेस एंड अनटिल आप एक बहुत ही क्रेजी प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो. मतलब द गेम इज ऑफ प्रॉम्प्ट, राइट? मतलब AI को भी इलस्ट्रेशन बनाने के लिए भी आपको प्रॉम्प्ट देना है. वो भी थोड़ा बहुत सीखो. मैंने थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट देना सीखा था कि कैसे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं, पिक्सार 3D, लॉन्ग फॉर्मेट फोटोग्राफी. अपना कुछ बार होता है कि आप अपने कैमरा का नाम लिख दो कि शॉट फ्रॉम निक्सॉन XYZ कैमरा, एंड वो वैसी पिक्चर देता है. सो दीज आर ऑल प्रॉम्प्ट कीवर्ड्स. इनके बारे में सीखो. जब आप इनके बारे में सीखते हो तो आपको समझ आता है कि प्रॉम्प्ट कैसे दे सकते हो. आई मीन, इतने जल्दी कोई 15-20 दिन के स्पैन में क्रेजी प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं बन सकता, बट एक एंट्री लेवल प्रॉम्प्ट काम चल जाएगा. एंड दैट वाज द थिंग कि हमारे जो इलस्ट्रेशंस है, दीज ग्राफिक्स, दे केम फ्रॉम AI. बाकी लोगो डिजाइनिंग सिंपल थी यार, थोड़ा एस्थेटिक सेंस था, तो लोगो तो खुद डिजाइन बहुत पहले कर लिया था. उसके अलावा बाकी सब कुछ वाज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑन Canva and Adobe Illustrator. So yeah, that is how we got into it and got the branding done. मैं आपको कॉस्ट डिफरेंस बता रहा था. एक डिजाइनर एक बार में पड़ता है 15-20 हज़ार का. अगर आप AI देखो, लेट्स स्टार्ट विद अ बेसिक AI विच इज मिड जर्नी. 1,000 रुपये 1,500 रुपये में आपको 1 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है. 30 दिन है आपके पास. Canva फ्री है. Canva प्रीमियम भी ले लो तो आप क्या 500 रुपये खर्च कर दोगे, 500 रुपये पर मंथ खर्च कर दोगे, 2,000 हो गया. एंड मैं कह रहा हूँ कि Adobe Illustrator महंगा है, वो 10,000 का हो गया, बट वो मतलब सॉफ्टवेयर खरीद लिया आपने, साल भर महीने का 10,000 का है. आई एम नॉट प्रीटी श्योर, मैंने दोस्त से उधार पे लिया था. तो क्या कहते हैं, यहाँ पे बचा लो. आप किसी के दोस्त किसी के पास है, कोई आपका निफ्ट वगैरह में दोस्त है, आप उधर से ले लो. मैंने ऐसे करा था, तो वो मिल गया था सीन.
तो ऐसे काम हो गया 2000 रुपए में आप, मतलब आप अगर इक्वेट करो किसी 20,000 का डिजाइनर से, काम 2000 में हो गया बेसिकली. 2000 में हो गया. करेक्ट. ग्रेट. मेरे को एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन अराउंड फोमो था कि यू ऑल्सो हैड प्री मिक्सेस एंड योर प्लान वाज टू गो इनटू ऑल द segments where they are artificial sugars basically. You wanted to be a better for consumer sugar brand, मतलब sugar oriented brand. तो and the sharks were like कि नहीं, focus on iced tea and premixes, milk mixes में मत जाओ and do not go left right center. तो आपका क्या प्लान है अब कि do you want to still focus on other things or you want to continue with iced tea and premixes? And premixes भी तो फिर कैसे? How? So yeah, हाँ मतलब milk mixes we've put it on hold. मतलब recipes we curated, we have the recipes. I mean we'll also do consumer testing for it, so that we may still do. But otherwise to launch it, it's not a recent plan till now. I mean we're yet to have a word with our investors about it. And as we said in the tank कि इसके बारे में हमें थोड़ी guidance चाहिए, because we completely agree with them कि यार हम अभी एक water based ready to drink product कर रहे हैं and फिर एक premix that is also milk based. इट्स अ ह्यूज डिफरेंशिएशन. एंड जब वर्किंग कैपिटल इतना कम है तो आप इतने सारे कैटेगरीज ओपन अप नहीं कर सकते हो. सो प्रोबेबली सम टाइम इन द फ्यूचर. राइट नाउ अभी हमारा थॉट है कि आइस टी को थोड़ा और अफोर्डेबल कैसे बनाए. जैसे अभी मैं कह रहा था पेट बॉटल एट 40 रुपी प्राइस पॉइंट, 30 रुपी प्राइस पॉइंट, ये ट्राई करने की कोशिश है कि यार इधर कहीं पे लाएं. सो या मेक सेंस. ग्रेट ब्रांड, ग्रेट प्रोडक्ट, होपफुली इट गोज स्काई रॉकेट. ठीक है, मेरे को ये पूछना था, इट्स बहुत हो गया शार्क टैंक एंड फोमो. मेरे को पूछना था हु इज एक्चुअल गौरांग ऑफ एंटरप्रेन्योर, ऑफ स्टार्टअप, ऑफ बिजनेस. गौरांग एक्चुअली क्या करता है, कैसे वाइब करता है, व्हाट ही इज एक्चुअली इन पर्सन. यार एक्चुअली इन पर्सन तो आओ इन पर्सन, तब फिर समझ आएगा. दिल्ली आओ कभी बिना कैमरा के, दिखाओ. दिल्ली आओ. नहीं क्या कहते हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं है. जो सब लोग करते हैं वही रहता है कि दोस्तों के साथ बैठ गए, थोड़े गपशप कर ली, थोड़ी बकचोदी कर ली. ये सब रहता है. क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो स्पोर्ट्स, आई एम बिग ऑन स्पोर्ट्स, सो वॉचिंग एंड प्लेइंग बोथ. मतलब F1, गोल्फ, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, एवरीथिंग. सो आई थिंक अगर कोई डाउन टाइम ऐसा मिल रहा है जहाँ पे आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो एंड कोई बंदे मिल जाए जिनके साथ आप खेलने जा सकते हो तो खेल लेते हैं, स्पोर्ट्स खेल लेते हैं. सो आई थिंक sports is a great vibe. बाकी music and everything, yeah. Great. Is there anything जो आपको कहना है? Do you want to say anything? Do you want to promote ऐसे your pitch? Your... ऐसे खुला, हाँ, ऐसा खुला बेचूं, खुला. हाँ, कोई स्ट्रेस नहीं है. यार नहीं, मैं तो consumer actually में, whoever is listening, right? If you ever get a chance to try FOMO, I think it is going to be a long journey of disrupting the foreign brands that have been giving us not so true products. So अगर कभी भी कमी हमारी ऑफरिंग में कभी भी लगे, because we are also innovating on the go, we are not afraid of receiving feedback. So please give us feedback. हम लोग better करते रहेंगे, better offering देते रहेंगे, and I think with that vision we'll be able to dent the landscape. So yeah, guys, please keep on buying FOMO, and always with the thought of giving feedbacks directly to the company. Perfect. Thank you so much for doing it, Bia. Loved it. Enjoyed it a lot. नहीं, I enjoy talking with you, man. मैंने मयंक के साथ एपिसोड देखा था तुम्हारा. मयंक, फाउंडर ऑफ गुड गम. बढ़िया, उनकी भी बहुत अच्छी पिच थी. सो या जैसे ही मैसेज आया था मैंने कहा let's do it. Thank you so much. Thank you everyone for listening, and thank you so much, Bia, for doing it. Thank you so much, Aditya, for having me. Have a good one. Thank you so much for listening till this point. If you've liked the conversation, you've learned something from the conversation, you've taken away something from the conversation, do not forget to hit the like button, share it with your friends, family, peers, everyone, and do not forget to subscribe to Thoughtcast. I'll see you next week. See ya.